अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय शऊर। अभी हम लोगों ने पढ़ना है अगला वाला बुक, अगली वाली बुक पढ़नी है, अगला सब्जेक्ट पढ़ना है। अगले हमने जो है वो एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, डन हो गया, सही है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके वैसे तो 12 हैं मतलब के टॉपिक्स इस वीक के, लेकिन 12 टॉपिक इसका अभी तक अपलोड नहीं हुआ। कल तक अपलोड हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, उसको फिर कर लेंगे। वैसे भी हमने इसके कितने टॉपिक्स किए हुए हैं, मेरे ख्याल में तो 6-7 ही किए हुए हैं मेरे ख्याल में। हम देखते थे, मेरे ख्याल में इसके मैंने 8 टॉपिक या 8 टॉपिक किया हुआ है। 8 टॉपिक किया हुआ है, 6 और 7 रहता है, सही है। 6, 7 और 9, 10, 11 ये सारे टॉपिक इसके रहते हैं। इसके टॉपिक सबसे पहले तो कवर कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसका ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इसका 6 टॉपिक और 7 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी वीडियो सुन लेते हैं। 6 टॉपिक का नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारी सब्जेक्ट का टाइटल है ENG301 बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें टॉपिक नंबर 6 है, इसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। आपने परेशान क्यों ना, मैं सारे टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज ही अपलोड करूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 टॉपिक्स, टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7, ठीक है, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Virtual University. This is Shakil Amjad and our topic is business communication. Today we are going to have 6th lecture. In the previous 5 lectures, we went through different aspects of business communication. We defined the word communication with reference to business, and we went through what is business communication. How does the flow of business communication runs in an organization? How important is business communication for promotable executives? And what is the process of communication? And we went through different components of communication, and then we went through different barriers, noise, fall-off, etc., etc. Today we are going to pick up a new, not exactly a new topic, but one aspect of the word communication or business communication, and that is non-verbal communication. For example, if you look through the mirror into a classroom, you are unable to listen to the voices of the students and of the teachers, but you come to know through the glass that there is some teaching going on in the class. So how are you going to determine that they are involved in teaching? You are not listening to anything. For example, you happen to pass by 2 people, and these 2 people are engaged in some communication, but you can very well say that you can very well pinpoint the role of those 2 people. You can say that one is an officer and the other is a subordinate. You haven't heard anything, but you think that you can tell. On what basis you can make the claim that you can tell about the class? The first example, that they are engaged in teaching, in learning, and in the second example that I cited, that one of them is officer and the other is the subordinate. You haven't heard anything, no sound, no voice. So on what basis you can make this claim? Obviously, all of us think that they can do it very easy. It's not only the word that help us determine the role of people or the type of communication taking place among people. We do not only learn through words, we also learn through a lot of other things than words. For example, you can say that the way the people were sitting in the room, in the classroom, was enough to tell you that they were the students. The way they were seated, they were body movement of the gesture of the students told you that they were students. And a person, say teacher, standing near the blackboard or the whiteboard, having a marker in his hand, was enough to tell you that that gentleman is the teacher of the class. Similarly, when you pass by those 2 people, and you could say that one is the officer and the other is the subordinate, not from their words, but from their body movement, from their posture, from their facial expression, you were quite confident to say that one is the officer and the other is the subordinate. So all these things tell us that there are quite few situations in which we communicate through only through words. In most of the situation, we communicate not only through words, but also through non-verbal cues. Non-verbal cues are always being given, being transmitted to others who are having our messages.
सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई रिटन कम्युनिकेशन ऐसी नहीं है, कोई ऑरल कम्युनिकेशन ऐसी नहीं है कि जिसमें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ना साथ साथ चल रही है। यानी ऑरल कम्युनिकेशन में तो आप मुझसे एग्री करेंगे कि वो ठीक है, मैं जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो यू सी दैट माई हैंड्स आर मूविंग, माई देयर इज अ मूवमेंट इन माई बॉडी, देयर आर सम एक्सप्रेशन ऑन माई फेस, आई एम ट्राइंग टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद यू। यानी मैं पूरा जो पूरी बॉडी है उसकी मूवमेंट भी मेरे वर्ड्स के साथ साथ कन्वे हो रही है। अगर थोड़ी देर के लिए आवाज़ बंद कर दी जाए तो आप कहेंगे कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या मायने? रिटन कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मायने ये है, आपके पास एक लेटर गया मिसाल के तौर पर, वो लेटर में एक मैसेज है, प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग गुड्स लाइक दिस, राइट। लेकिन इस मैसेज के साथ साथ बहुत सी दूसरी चीज़ें भी जा रही हैं। जैसे आपके पास एक लेटर आया, आपके पास उस लेटर में एक ऑर्डर दिया गया, तो स्पाइस का ऑर्डर है, तो कंप्लेन लेटर आया, लेकिन वो लेटर का मैसेज तो आप तक पहुंच गया, लेकिन उस मैसेज सेंडर के बारे में बहुत सी मालूमात भी आप तक आ गई। यू नो अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। वो क्या मालूमात है? मिसाल के तौर पे अगर पेपर जिस पे लेटर लिखा गया है वो लाइंड है, लकीरों वाला पेपर है, राइट, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट दिस लेटर हैज नॉट बीन सेंड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वेदर इट्स अ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हैव यू एवर रिसीव्ड एनी लेटर लाइक दिस, इट्स लाइक द पेज ऑफ अ कॉपी। जैसे आप इसी तरह ये किसी ने पेज के इस्तेमाल, पेज में लाइनों ने आपको बता दिया कि ये किसी इंडिविजुअल की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं। इसी तरह फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेटर हेड इन अ लेटर ऑफ लेटर एंड दैट हैज वेरी गॉडी कलर्स, बड़े चमकीले रंग है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द पीपल। हालांकि मैसेज बिल्कुल दूसरा, मैसेज आपको कंप्लेन लेटर आया, मैसेज आपको कोई ऑर्डर आया, मैसेज कोई इंक्वायरी आई है, लेकिन इसके बावजूद जो है आपने बड़ी आसानी से उस आदमी के बारे में, लेटर राइटर के बारे में, द सेंडर ऑफ द लेटर के बारे में, यू हैव मेड एन ओपिनियन दैट द सेंडर ऑफ द लेटर हैज अ पुअर टेस्ट। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ स्मजेस डब्बे पड़े में, टाइपिंग पुअर है, बार बार एक लफ्ज़ के ऊपर पीस लगी है, so you can form an opinion that the person writing the letter is not considered about a lot of things. So किसी भी मैसेज को टोटल अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी मैसेज को टोटल अंडरस्टैंड करने के लिए we do not only receive the message through words or through words, oral words, we also receive the message through a lot of non-verbal cues. और टोटलिटी जो है किसी भी मैसेज की वो हमें वर्बल और नॉन वर्बल क्यू जो है ये दोनों मिलके देते हैं, और इन दोनों के ऊपर हम एक ओपिनियन जो है वो फॉर्म करते हैं। क्या आप जब मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं तो you also make some non-verbal cues? And do you think that you understand others through their non-verbal cues? So let's look at the chapter or the topic that we are going to understand and see that what are its main objectives. What are the objectives of understanding this topic? That is that when we finish this topic, we should be able to know that what we have learned. So I would like to read the objective of the topic. The objective of the topics are that we should be able to define the term non-verbal communication. I mean, non-verbal communication. We should be able to define. Let's then define the 4 types of non-verbal communication. So we are going to know that what are the types of non-verbal communication. Then identify its importance in the total message. Distinguish 4 ways of grouping non-verbal communication. Identify 7 aspects of non-verbal behavior. Highlight the role of non-verbal behavior in the communication process. Confirm with the sender of a message the meaning of their non-verbal behavior communication. Interpret and use your own non-verbal communication. Appropriately use non-verbal communication. So last 3 are related to sort of your knowledge of the topic, that what you have learned after listening to the whole lecture. What do you know about different aspects of this topic? So basically इसमें हम स्टडी करेंगे कि what is non-verbal communication. Non-verbal communication की types क्या हैं, इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है। हम जब किसी मैसेज को, whether it's a written message or whether it's an oral message, how can we determine the non-verbal message from the different aspect. और फिर यह कि how can we apply it to our knowledge, कैसे इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए non-verbal communication को समझ सकते हैं। As you will see that different people, like different scholars are of opinion that 60 to 90% of the message depends on non-verbal cues. यानी 60 से 90% तक मैसेज को समझने का, मानने का इंतजार non-verbal cues पे है। It's very quite very simple. Sometimes you say that, sometimes you yourself make the opinion that despite somebody gave you an oral message, you are not ready to accept that oral message, and you go for the non-verbal message that the person gave with the oral message. For example, you requested for something to somebody. आपने किसी को कहा किसी चीज़ के लिए कि भाई ये I want this thing, और उस बंदे ने आपको कहा कि वो चीज़ उसके पास नहीं है, लेकिन all the non-verbal cues given with the oral cue or oral message were denying the oral message. उसके ऊपर आपने कह दिया कि this gentleman is not honest at this very moment. तो ये बात कुछ सच लगती है कि हम कहें कि non-verbal messages जो है वो 60 to 90% तक उनको यकीन किया जाता है. So let's say that how can we interpret these non-verbal messages? Non-verbal communication consists of that part of the message that is not encoded in words. The non-verbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feeling and prefaces more spontaneously and honestly than the verbal part. If the verbal message does not match the non-verbal communication, people tend to believe the non-verbal message. So आपने देखा कि non-verbal message जो है ये it's not encoded in words, यानी non-verbal message जो है ये words में encode नहीं किया जाता, चाहे आपका written message है या oral message है। non-verbal message वो है जो उस message के अलावा है। जैसे मैंने मिसाल दे रहा हूँ कि इस वक्त मैं verbal message जो है बोल रहा हूँ, लेकिन non-verbal message इस वक्त मेरे body movement है, मेरे हाथ की movement है, मेरे चेहरे की expression है, मेरा आपके साथ eye contact है, तो ये सारे मेरे non-verbal है। लेकिन ये non-verbal messages जो है ये मेरे इस जो verbal message है, जो word का message मैं encode कर रहा हूँ उससे different है। उसके अलावा अगली बात जो आपने नोट की कि non-verbal message जो है ये मतलब conscious feeling, it goes unconscious।
यानी मैं जो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ या आप किसी शख्स को देखते हैं कि वो गुफ्तगू करते करते जो भी मूवमेंट कर रहा होता है अपनी नेचुरल सिचुएशन में, उसमें उसकी तमाम मूवमेंट जो होती है वो यानी खुद इख्तियारी होती है, वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, उसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होती। और अगली बात जो है वो ये है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये बड़ी फ्रैंक और ऑनेस्ट है। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसके ऊपर आप अपनी बात का इंहिसार कर सकते हैं। यू कैन डिपेंड ऑन नॉन वर्बल मेकिंग ओपिनियन अबाउट अदर, यू कैन डिपेंड ऑन नॉन वर्बल क्यूज। दिस इज सेम दैट आई जस्ट सेड दैट 60 to 90% ऑफ द मैसेजेस रिसीव फ्रॉम द नॉन वर्बल क्यूज। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कितनी है। एक तो ये कि इट्स नॉट एनकोडेड थ्रू वर्ड्स, यानी अल्फाज नहीं आती, चाहे वो रिटन मैसेज है या ऑरल मैसेज है, ये सीधा जा रही होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये कॉन्शियसली नहीं जा रही होती। कोई भी आदमी गुफ्तगू करते वक्त किसी खास मोमेंट को नहीं कर रहा था। अब ये बात कि कोई आदमी जो है जब वो किसी खास बात को अपनाता है, यानी कोई खास बॉडी जेस्चर अपनाता है, फेशियल एक्सप्रेशन अपनाता है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन जो बॉडी जेस्चर जो है वो किसी खास वक्त में उसने लर्न किया होता है कॉन्शियसली, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो बात उसकी जात का हिस्सा बन गई होती है और फिर वो जब वो बात कर रहा होता है तो वो कर रहा होता है। जैसे भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जाएंगे तो हम इसको स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंफरादी तौर पर होती हैं और क्या क्या चीज़ें इज्तिमाई तौर पर होती हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त हमेशा हम कुछ ना कुछ बातें जो होती हैं स्पॉन्टेनियसली हमसे हो रही होती हैं, यानी फिर भी या हमसे उनका इजहार जो है वो हो रहा होता है। और हर आदमी जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं उसके और उसके ऑरल मैसेजेस में या रिटन मैसेजेस में जो उसके रिटन मैसेज या ऑरल मैसेज को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। दे आर एंड दे ऐड मीनिंग टू इट। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन को रीइंफोर्स करती है एंड इट एड्स मीनिंग टू इट। यानी नॉट ओनली यू गेट एन आइडिया फ्रॉम द मैसेज, योर आइडिया ऑफ द मैसेज इज रीइंफोर्स्ड एंड एडेड इन वन वे और द अदर थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए आप हर वक्त दूसरों को अपने बारे में यूज कर रहे होते हैं। अब लेकिन एक बात कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन मिल के ही कोई मैसेज को टोटलिटी देते हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हम किसी वक्त कोई आदमी जो है उसके नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर ही हम फॉर्म एन ओपिनियन दैट दे आर मेकिंग दे आर गिविंग सम मैसेज, वी कांट से इट दैट कि हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो उससे एक मैसेज मिल जाता है। दिस इज नॉट दो इन लॉट ऑफ सिचुएशन। फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी टू डू योर फेवर, आई सिंपली नॉड माय हेड, नॉट। तो अब नॉडिंग जो है इट्स अ कंप्लीट मैसेज जो है। तो बाद बात तो ये होता है, लेकिन मोस्टली जब हम कोई किसी शख्स के क्यूज से उसके बारे में नहीं कर सकते, हमें वर्बल और नॉन वर्बल को मिला के टोटल मैसेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यानी बोथ थिंग्स कम टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू गिव अस एन ओपिनियन। सो as we see that non-verbal communication is not the encoded message, it is given unconsciously, it is spontaneous, it is honest, very candid, very frank, and people tend to believe more on non-verbal messages than verbal messages. लेकिन varies person to person। हर आदमी के बारे में आप जब ओपिनियन बनाते हैं तो वो आपका पास एक्सपीरियंस होता है, वो भी बहुत हद तक उस पर डिपेंड कर रहा था कि आपने किसी शख्स के बारे में क्या ओपिनियन जो है वो बनाना है। अब देखते हैं कि what are the different types of non-verbal communication. We say that they are at least 4. Number 1 is personal to the individual, common to a group of people or culture. Number 3, universal to mankind. And number 4, unrelated to the message. यानी 4 किस्म की non-verbal communication की types हैं. There are 4 types. Personal. यानी personal. Every one of us something or the other which is his personal. Though we live in a society. We live in a society. From any person outside living this society will take us a part of the society. लेकिन living in one society we are individual. इस पूरी society में रहते हुए हम individual हैं. और being individual we have our own non-verbal communication, यानी हमारी अपनी एक non-verbal communication है। उसको हम define कर सकते हैं। Non-verbal communication involves kinds of non-verbal behavior that are unique to a person. The meaning is also unique to a person sending the message. यानी non-verbal communication, personal communication एक ऐसी communication है which is unique to a person। और जब आदमी कोई मैसेज दे रहा होता है तो वो उसके वो मैसेज का non-verbal मैसेज का वो पार्ट होता है वो उस शख्स का एक मुनफरिद उसके मिजाज को शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे you must have seen that some people like to talk when they are working and some people do not like to talk when they are working। आपने देखा बाद लोग जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बातें करना पसंद नहीं करते जब कोई काम कर रहे होते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जो कि पर्सनल है, कि जिसमें एक इंसान की यूनिकनेस जो है वो शो होती है। बहुत से लोग हैं जो बातें करते वक्त सर को हिलाते हैं, ये उनका पर्सनल, सारे लोग नहीं होते। यानी हमारी सोसाइटी के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें हम कहेंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो कोई काम करते वक्त कोई खास काम करते हैं जो कि दूसरे लोग वैसा काम करते हुए नहीं करते। अब राइटिंग को ले लें, हर आदमी जो है वो लिख रहा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन पेन को पेंसिल को पकड़ने का स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो योर फेशियल एक्सप्रेशन व्हाइल यू टॉक आर आल्सो डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम पीपल टू पीपल। यानी हर आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है। योर रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिचुएशन इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन यू आर नर्वस यू मे cry, but in the similar situation another person may give another response। वो बंदा जो है वो हंसे। यानी हंसना जो है ये हमेशा किसी बात के ऊपर इंसान के सिर्फ खुशी को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये बाज़ औक़ात खौफ को भी जाहिर करता है, इंसान के मुख्तलिफ जज्बात को जाहिर करता है। तो ये इस तरह वी कैन से कि हर आदमी का रिस्पॉन्स जो है किसी सिचुएशन में वो इनफरादी है, जो कि उसकी सोसाइटी के दूसरे जो अफराद है, मेम्बरान है, उससे मुख्तलिफ है। सेकेंड टाइप इज द ग्रुप, दैट इज कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी बाय कंट्रास्ट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कल्चरल जो कम्युनिकेशन है ये इंडिविजुअल्स के कंट्रास्ट में ये ग्रुप की है। हर ग्रुप जो है उसकी अपनी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मिसाल के तौर पे वी नो कि जो मुस्लिम कल्चर्स हैं उसमें आई कॉन्टैक्ट जो है वो एक उसका मायना दूसरा है विद रेफरेंस टू यानी मॉरल्स, लेकिन यही आई कॉन्टैक्ट जो है ये किसी यूरोपियन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंट है। वेस्टर्न कल्चर में हो सकता है किसी को सिर्फ इस बिना पे किसी जुर्म का मतलब मान लिया जाए कि व्हेन द पर्सन वाज आस्क्ड टू
prove his innocence, he did not make the eye contact. यानी जब किसी को कहा गया कि वो अपनी innocence साबित करे तो सिर्फ ये था कि वो eye contact नहीं बना सका, तो इस बिना पे उसको मुजरिम करार दिया। जबकि कई दूसरे कल्चर्स में इस eye contact को अच्छा नहीं समझा जाता। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेटस में, किस रोल में है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप कल्चर है ये भी इंडिविजुअल कल्चर की तरह मुख्तलिफ कल्चर है। इसी तरह हर कल्चर में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो उसका भी खासा होती है। लोगों के आपस में मिलने जुलने का तरीका, लोगों का आपस में बात करने का तरीका, लोगों का आपस में बैठने का तरीका, लोगों का मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ तरीके से पार्टिसिपेट करना किसी एक खास कल्चर के की प्रोडक्ट होता है, किसी खास कल्चर के साथ मुंसलिक होता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें जो है, अगरचे वही मूवमेंट जो है वो दूसरे किसी कल्चर के लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो रही होती हैं कल्चर ए से। तो ये हर कल्चर में पाया जाता है कि जिसमें कुछ ऐसे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जो उसको डिफरेंट करते हैं किसी दूसरे कल्चर से। तो एक तो पर्सनल डिफरेंसेज हैं, दूसरा कल्चरल डिफरेंसेज है या ग्रुप डिफरेंसेज हैं विद रिलेशन टू डिफरेंट कल्चर, और तीसरी चीज़ जो है जो हम 4 टाइप्स को बयान कर रहे हैं वो यूनिवर्सल इंडिविजुअलिटी है। यानी हर इस पूरी दुनिया में इस पूरे के ऊपर बेशुमार लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहसियत मजमूई the whole human race forms one culture, forms one type, यानी एक है, it is different from the animal world। तो इनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल खुशी का एहसास, किसी बात पे खुश होना, इट्स कॉमन टू ऑल, कॉमन टू एवरीवन इन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। कि जो भी इस प्लैनेट पे रहे हैं उन तमाम में ये बातें पाई गई हैं कि वो खुशी के मौके पे खुश होते हैं, गमी के मौके पे गम होता है, गुस्सा होता है, किसी बात के ऊपर गुस्सा होता है। यानी मुख्तलिफ जज्बात का इजहार और मुख्तलिफ जज्बात को कन्वे करना, ये पूरी हमारी नौ इंसानी यानी ह्यूमन रेस जो है उसकी एक इंडिविजुअलिटी है और ये उसका एक कल्चर है। तो ये तीसरी बात। चौथी बात जो है वो है अनरिलेटेड नॉन वर्बल क्यूज। अनरिलेटेड नॉन वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ स्नीज। अब इस स्नीज का एक नॉन वर्बल एस्पेक्ट यह है कि ये आपकी गुफ्तगू के साथ अनरिलेटेड है, यानी इससे आपकी गुफ्तगू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे आप गुफ्तगू करते करते कोई फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो वो आपके किसी लफ्ज़ को, किसी वर्ड को रीइंफोर्स कर रही है, उसके मीनिंग को ऐड कर रहा है, लेकिन स्नीजिंग एक ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका आपके मैसेज के ऊपर बहरहाल कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह के मैसेज चीज़ों को हम अनरिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि बाज़ औक़ात आप स्नीजिंग कर रहे हो और आपकी स्नीजिंग जो है वो किसी को एक नॉन वर्बल मैसेज दे कि आप इस वक्त फ्लू का शिकार हैं, यू आर नॉट वेल, यू हैव कॉट कोल्ड। लेकिन आमतौर पर व्हेन यू आर हेल्थी, यू आर मेकिंग एनी कन्वर्सेशन एंड ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन यू स्नीज, दैट इज क्वाइट अनरिलेटेड टू द मेन मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 4 टाइप की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, या 4 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद व्हाट डू यू थिंक दैट यू नो व्हाट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एंड हाउ फार इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्बल और द रिटन और ओरल मैसेजेस। आप अगर अब 2 लोगों को देखें कम्युनिकेशन करते हुए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बिना पे आप क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि वो इस वक्त किस तरह की कम्युनिकेशन में है। किसी शख्स की कोई इंफरादी कम्युनिकेशन को आप डिटरमिन कर सकते हैं कि वो इस वक्त कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 4 बात। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं और डिफरेंट आगे इसके एनालाइज करते हैं इस कम्युनिकेशन को। जो हमने 4 टाइप्स को स्टडी किया इसको ही हम फर्दर लेके चलते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल है कि एवरी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एज वी स्टडीड व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू विद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। And context, we discuss context as a component of the process of communication, and so you can imagine the importance of communication, how important is this aspect of or component of communication. So we need to understand that communication, whether it's verbal or non-verbal, that always take place within a context. यानी वो हर communication जो verbal हो या non-verbal हो वो हमेशा एक context में होती है, and to understand the context is very important. You cannot give any meaning to any act of communication, whether oral or written communication, without considering the context of the communication. And to understand this, you need to know a few more things. So we can define this, that how can we analyze non-verbal communication. People communicate non-verbally with body movement and with personal relationship behaviors. This non-verbal communication changes or complements the verbal communication. Non-verbal communication always occurs in a context or framework. The context often determines the meaning of the non-verbal behavior. On different occasions, the same non-verbal gesture may have completely different meaning without context, and spoken words non-verbal behavior is almost impossible to interpret with any accuracy. So आपने ये चीज़ देखी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बगैर हम किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते। पीपल कम्युनिकेट नॉन वर्बली थ्रू जेस्चर्स, थ्रू पोस्टर्स, थ्रू बॉडी मूवमेंट, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, एंड ऑब्वियसली थ्रू देयर वॉइस क्वालिटी. Voice quality is a very important thing that we are just going to discuss, and through physical features, appearance, such as, and through environment. Environment is also one of the aspects that conveys some non-verbal communication. But what we need to understand that all these things have to take place within a certain context to give us a non-verbal communication. Non-verbal communication देने के लिए it is important that all these things should give us some message, and the message should be in some context. So let's look at some different aspect of non-verbal communication.
Critically, writings and research classify non-verbal communication into 7 main areas: body movement, physical characteristics, touching, behavior, vocal qualities, space, proximity, artifacts, and environment. So as I said, these are 7 different types which help us in determining non-verbal communication: body movement, physical characteristics, environment, artifact, or paralanguage. So now let's understand all these 7 aspects that how can we better understand non-verbal communication. To begin with, body movement. Body movement includes movement of hands, head, feet, and legs, postures, eye movement, and facial expression. All these affect the message. यानी किसी भी मैसेज को देते वक्त हम जब ओरल मैसेज दे रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो बॉडी मूवमेंट है, हाथों का हिलना, हम जो आंखें हमारी कांटेक्ट कर रही होती हैं, आंखें जो आई बॉल जो है वो घूम रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बॉडी मूवमेंट का। इसी तरह बॉडी मूवमेंट के अलावा बॉडी पोस्चर जो है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि आप किसी जगह इंटरव्यू देने गए हैं। अब इंटरव्यू जब देने गए हैं, एंड व्हेन यू एंटर द रूम एंड सिट ऑन द चेयर, what are your body posture, your body posture and the body posture of the person interviewing you? यानी जो आपके body postures हैं और जो आदमी आपका इंटरव्यू कर रहा है उन दोनों के body posture जो है वो क्या होंगे? You can imagine, आप जरा टांगों को साथ जोड़े हुए कुर्सी के साथ थोड़ा सा सीधा बैठे हुए होंगे और आपके जिस्म में एक तनाव होगा, बट कंपेयर टू यू आपके जो इंटरव्यू हैं वो बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे होंगे, रिलैक्स बैठे होंगे, थोड़ा सा हो सकता है रिक्लाइन हुए हो, कुर्सी की बैक के साथ उन्होंने पुश लगाई हुई हो और वो इस तरह बैठे हुए हैं। तो सिटिंग पोस्चर या स्टैंडिंग पोस्चर, किसी आदमी के खड़े होने का तरीका, किसी आदमी के खास तरह से चलने का तरीका, ये बॉडी मूवमेंट और बॉडी पोस्चर जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम रोल है। जब हम किसी से मिलते हैं तो किसी के बारे में जब हम कोई ओपिनियन जो है वो बनाते हैं तो हमारा ओपिनियन जो है वो किस बिना पे होता है? ओपिनियन उस आदमी के नॉन वर्बल जो क्यूज है उनको हम अपने पास एक्सपीरियंस में किसी नॉन वर्बल आदमी के नॉन वर्बल क्यूज के साथ मिलाते हैं और उसके बाद उस बंदे के बारे में कोई हम ओपिनियन जो है वो बनाते हैं। सो बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी पोस्चर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दे हेल्प अदर्स टू फॉर्म ओपिनियन of us or of anyone whom they are watching, कि उनके कैसे उनके बारे में कोई ओपिनियन जो है वो बनाया जाए। तो बॉडी मूवमेंट और बॉडी पोस्चर, आपके हाथों आपके जिस्म, ये बड़े अहम नॉन वर्बल क्यूज हैं जो दूसरों को और दूसरों को हमारे बारे में बताते हैं, and we come to know about others through these postures of theirs, right? And second thing is physical characteristics. Physical characteristics such as body shape, general attractiveness, body and breath odor, weight, hair and skin color and are important part of non-verbal communication. अब physical characteristic एक आदमी की body shape क्या है, उसका जो है वो बिल्ड क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी बंदे के फिजिक के बारे में, उसके फिजिकल फीचर जो है, किस तरह वो बाल बनाता है, उसके जिस्म की जो बॉडी ओडोर है वो क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें हेल्प करती हैं कि हम दूसरों के बारे में कोई राय कायम करें। ऑब्वियसली इफ समबडी इज वेयरिंग सम वेरी गुड परफ्यूम, यू आर गोइंग टू मेक अनदर opinion about him or her than about somebody who gives off some bad smell. You can find that person is not a very tidy one, not clean. तो इस दूसरों के बीच पर्सनालिटी के बारे में वी फॉर्म ओपिनियन थ्रू देयर फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर से हम उनके बारे में ओपिनियन जो है वो बनाते हैं। सिमिलरली, because people react and respond to these factors, they all determine their responses in interpersonal encounters. First impression and images of others can be associated unconsciously with past experience of people with similar physical characteristics. यानी हम जब एक दूसरे लोगों के बारे में ओपिनियन बनाते हैं उनके फिजिकल फीचर्स के हवाले से, तो when we come across a person and whether we are impressed from him or her or not will depend on our past experience about a similar person. यानी हमने किसी माजी में किसी शख्स को उस हालत में देखा था तो हमारा उसके बारे में क्या रवैया बना था, उसी रवैये को हम हाल में अप्लाई कर देंगे कि when we come across such a person who looks very smart, very attractive, so obviously we form an opinion about him, and this opinion of us will depend on our past experience of a similar person having similar features, similar personality. तो इस तरह physical feature जो है या physical characteristic जो है ये बहुत डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो या किसी जगह मार्केटिंग करने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं, तो you know that how important your physical appearance is. यानी you win or lose depend on your physical appearance or your first impression or your first image that you are going to leave to the people you are going to see, you are going to have interaction with, and जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं उनके साथ आपका जो impression रहेगा वो आपकी physical appearance है। तो यानी इससे पहले कि हम बोलें, हमारे वर्ड, हमारी बात, हमारी शख्सियत को reinforce करें, people make opinion about us on the basis of our physical appearance. So after physical appearance, we have the third aspect of non-verbal communication, that is paralanguage or vocal qualities. Paralanguage, as it's quite clear from its very definition, very term, paralanguage, that's something more than words, more than your words that you convey through your voice. यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी आवाज़ में अल्फाज के अलावा बयान करते हैं। You know that when you are in a sad mood, you utter some words, but the way you utter the word give a non-verbal message to the listener, and the listener asks you that what has happened, कि क्या हुआ है। Similarly, when you are happy, you not only use words, but the way you use those words also give a message to your listener that there is something of happiness. So the way words are uttered matters and give non-verbal messages. So let's see that what actually how can we define this paralanguage. We can say paralanguage is that part of language associated with but not involving the word system. It consists of the voice qualities and vocalization that affects how something is said rather than what is said. Voice quality includes pitch range, pitch control, rhythm control, tempo, articulation control, resonance. So सबसे पहले बात तो यह है कि it is not what is said. यानी पैरालैंग्वेज में हम जिन चीज़ों पे गौर करते हैं या जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बाइस बनते हैं, जो मैसेजेस देते हैं,
दैट इज नॉट व्हाट इज सेड, ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, बट हाउ समथिंग इज बीइंग सेड, कि कोई चीज़ जो है उसको कैसे कहा जा रहा है, किसी चीज़ को हम जो कह रहे हैं तुम्हारी आवाज़ उसको कैसे कह रही है। तो इसमें जिन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पिच। पिच जो है, पिच को हम कह सकते हैं कि पिच इज द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द साउंड, यानी हमारी साउंड की म्यूजिकल क्वालिटी जो है, यानी लो पिच है या हाई पिच है। बेसिकली हमारे इस एडम्स एप्पल के पीछे दो वोकल कॉर्ड्स हैं, दीज आर टू मस्कुलर फोल्ड्स। इन फोल्ड्स में मुख्तलिफ अल्फाज निकलते वक्त इनमें वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है इसके नतीजे में हमारी साउंड जो है या आवाज़ जो है उसमें पिच जो है वो आती है, कि कितनी तेजी के साथ वाइब्रेशन जो है वो हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन हो रही है, उससे आती है। तो पिच जो है कि हमारे नोट्स जो है वो कितने ऊंचे हैं और कितने नीचे हैं। अब जब आप किसी मसले का शिकार होंगे, किसी परेशानी में होंगे, तो उस वक्त आपकी आवाज़ जो है वो डिफरेंट होगी। इसी तरह रिदम है, टेम्पो है, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें एक रिदम आ रहा है, अल्फाज जो है वो तसलसल के साथ एक कंटिन्यूटी जो है, चाहे आप ऊंची बोल रहे हैं या आप हल्की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं, बट देयर इज अ रिदम। सुनने वाला जो है वो उसको एक फ्रीक्वेंसी उसके कानों तक पहुंच रही है, एक्यूस्टिक्स यानी फिजिकल वेव्स जो है वो उसके कानों तक पहुंच रहे हैं, वो एक रिदम महसूस करता है। इसी तरह टेम्पो जो है, गुफ्तगू में टेम्पो कि किस टेम्पो के साथ बोल रहे हैं, आप हेजिटेंट तो नहीं है, आप गुफ्तगू को साथ लेकर चल रहे हैं, सुनने वाला जो है उसके हिसाब को आप वक्फे पॉजेस जो है वो ज़्यादा तो नहीं दे रहे। इसी तरह रेजोनेंस, आपकी आवाज़ में गूंज क्या है, ये खासतौर पे दी एरिया बिटवीन दी वोकल कॉर्ड्स एंड दी ऑरल कैविटी और नेजल कैविटी, यूवियोला से नीचे जो है, यूवियोला से नीचे जो है ये हमारा हिस्सा, इसमें जो रेजोनेंस पैदा होती है, ये वॉल फेरिंग्स का इलाका है, जिसमें जब आवाज़ जो है वो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलती है तो इधर आके उसमें एक रेजोनेंस जो है वो पैदा होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पैरा लैंग्वेज के ज़िम्मे में आती हैं, एंड दे ऑल कन्वे सम नॉन वर्बल मैसेजेस टू आवर लिसनर, यानी नॉन वर्बल मैसेजेस में ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं, और किसी बात के ऊपर हमारी गम को, हमारी खुशी को, दे एक्सप्लेन डिफरेंट इमोशंस ऑफ अस, यानी ये हमारे मुख्तलिफ इमोशन जो हैं उनको बयान करते हैं हमारे लिसनर्स को, कि जो सुन रहे होते हैं, जो हमारे जो सुन रहे होते हैं उनको हम हमारी असल मैसेज के अलावा वो मैसेज किस मूड में दिया जा रहा है उसको यही चीज़ें जो है वो कन्वे करती हैं। Vocalization also gives clue to the total message. Three of these are shown in this table. The tone of voice, rate of speaking, and voice inflection are an important part of the total message. A tired person, for example, will speak more slowly than usual. A disappointed person may speak with a flat tone, while the tone of voice of someone excited about a coming holiday reflects excitement. So, ये इसमें the type vocal characteristics में we say that vocal characteristics laughing, crying, sighing, yawning, clearing the throat, groaning, yelling, whispering. Vocal qualifiers जो है intensity को show करते हैं, loud, soft, pitch, height, high, low, and vocal segregation sounds such as or silent pauses. So you can see that कि हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो जाती हैं, कि हम जिसको हमारे वोकल क्वालिफायर्स क्या हैं और वोकल क्वालिटी जो है वो क्या क्या हैं। तो इस तरह अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की हमने जो गुफ्तगू की है इसमें हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। अगर कि हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसमें मज़ीद कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस करना रहती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा शुरू से करें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो it's not encoded in words, it goes unconsciously, it is spontaneous, it is very honest, and then we discuss before it, non-verbal communication and verbal communication form the total message. I mean, we cannot say that verbal communication gives some separate message and non-verbal communication gives some separate message. The total effect of the message is given through both non-verbal and verbal signals. Then we studied different types of non-verbal communication, such as personal non-verbal communication, which is personal to every individual, as every one of us has his or her own way of communicating. Similarly, the second type is the group or cultural communication. Every culture is distinctive from other culture, and there are certain non-verbal aspects associated with one culture which makes them different from other culture. And then the third type of non-verbal communication is universal communication, the communication which is common to all the people living in every nook and cranny of the world, whether they are living in Africa or they are living in Asia or in any country. These non-verbal communication are common. And then the fourth one was unrelated communication, non-verbal communication such as sneezing, and which has little effect on the oral message. Then we studied how we can analyze communication, and we said that it can be seen in 7 parts: body movement. Then we said it has a physical appearance and paralanguage, and there are certain other parts as well, which we will be discussing in our next lecture. So today we can say that I hope that after having listening to this lecture, you must have formed an idea of non-verbal communication. So I would like you to think of your own personal non-verbal cues. What non-verbal cues you personally make, which make you different from others. So अगले लेक्चर तक के लिए फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। सो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ, तो रीड कर लेते हैं इसको। सो लेट्स गो टूवर्ड्स इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन है, उसमें है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ मैसेज दैट इज़ नॉट इनकोडेड इन वर्ड्स. The non-verbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feelings and preferences more spontaneously and honestly than
the verbal part. If the verbal message does not match the non-verbal communication, people tend to believe the non-verbal message. ठीक है, the non-verbal aspects of communication are so closely intermingled with the verbal that it is difficult to separate them. People receiving verbal and non-verbal messages combine them with the context in which the communication takes place and interpret the total message. So next is 4 types of non-verbal message. Non-verbal communication can be classified into 4 types: personal to individual, common to a group of people or culture, universal to humankind, and unrelated to the message random. ठीक है. Personal non-verbal communication was kinds of non-verbal behavior that are unique to one person. The meaning is also unique to the person sending the message. For example, someone may work while talking, another person may work in silence. There is one person may laugh due to nervousness or fear, while others may cry. Okay. Cultural non-verbal communication, by contrast, is characteristic of or common to a group of people. It is learned unconsciously by observing others in the social society group. ठीक है. In Aboriginal culture, for example, eye contact is less acceptable than it is European culture. ठीक है. Universal non-verbal communication is behavior that is common to humankind. ठीक है. It shows happiness, sadness or deep-seated feelings. For example, smile or tears. ठीक है. Unrelated non-verbal communication such as a sneeze is related to the verbal message. It can distract from the verbal message but has little effect on the meaning of the verbal part of the message. ठीक है. Next, how to analyze a non-verbal communication. People communicate non-verbally with body movements and with personal relationship behaviors. This non-verbal communication changes or complements the verbal communication. Non-verbal communication always occurs in a context or framework. The context often determines the meaning of the non-verbal behavior. On different occasions, the same non-verbal gesture may have completely different meanings without context in spoken words. Non-verbal behavior is almost impossible to interpret with any accuracy. Different types of non-verbal communication. The theoretical writings and research classify non-verbal communication into 7 main areas: body movement, kinesis behavior, physical characteristics, touching behavior, vocal qualities, paralanguage, space proximity, Africans, environment. ओके, उसके बाद है body movement. Body movement or kinesis behavior includes movement of the hands, head, feet and legs, posture, eye movement and facial expressions. All these affect the message. Body posture, the way person stands, leans forward. Okay, a person leaning forward, pointing and shaking a finger at someone is seen as trying to dominate the other person. The way this is received by others and the type of feedback given determines how the communication will flow. For example, emblems are non-verbal acts learned through imitation to reinforce or replace the word. The non-verbal signals for okay are nod or smile. Physical characteristics such as body shape, general attractiveness, body and breath odors, and weight, hair and skin color are important parts of non-verbal communication. Because people react and respond to these factors, they all determine their responses in interpersonal encounters. First impressions and images of others can be associated unconsciously with past experiences of people with similar physical characteristics. Touching behavior.
Stroking, eating, holding, or guiding the movement of another person are examples of touching behavior that communicate non-verbally. Each of these adds a different meaning to a message. ठीक है. Touch can console or support the other person and show feelings such as affect. A handsome, for example, can express dominance, equality. A pat on the arm can convey intimacy or control. ठीक है. Paralanguage, vocal qualities. Paralanguage is that part of language associated with but not involving the word system. It consists of the voice qualities and vocalization that affect how something is said rather than what is said. Voice qualities include pitch range, pitch control, rhythm control, tempo, articulation control, resonance. ठीक है. So vocalization also gives clue to the total message. 3 of these are shown in table. The tones of voice rate of speaking and voice inflection are an important part of the total message. A tired person, for example, will speak more slowly than usual. A disappointed person may speak with a flat tone, while the tone of voice of someone excited about a coming holiday reflects his excitement. Okay, so friends, so दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट. अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 7 की तरफ. इसकी वीडियो को सुन लेते हैं. हमारा सेशन भी हो गया है जनाब एक्सपायर. अब हम इसको भी लॉगिन कर लेते हैं. सबसे पहले तो इट इज़ डन. हम आगे हैं अपने एल पर आने के बाद हमारे पास आ गया है अपना काम. हम काम कर रहे हैं ENG301 पर. हम हैं इसके टॉपिक नंबर, हमने कर लिया है इसका टॉपिक नंबर 10 कंप्लीट. ठीक है, सही. प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस, इसका हमने टॉपिक नंबर 10 नहीं किया. इसका हमने किया टॉपिक नंबर 6, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब हमने करना है टॉपिक नंबर 7. इसकी वीडियो सुन लेते हैं पहले. Welcome to Virtual University. I'm Kiki Lamdar, and we are studying business communication. We have gone through different aspects of communication. What is communication, the flow of communication, the process of communication, barriers or pure of communication. Yeah, in the last lecture, we discussed non-verbal communication, that how we communicate non-verbally. Non-verbal communication is that part of the communication that is communicated without encoding anything in words. And this type of communication is more authentic. It is considered by people. And we also went through different aspects of non-verbal communication. We went through 4 aspects of non-verbal communication. Personal non-verbal communication, that is peculiar to any person living in any group, in any culture. Then when the second type of non-verbal communication was group communication or cultural communication, that how one culture is different from another culture, how a group of people is different from another group of people. And then we discussed universal communication. Universal communication means the non-verbal communication which is common to all human beings, like become happy on some occasion, become sad on some another occasion, so and so. And unrelated communication like sneezing or anything like this, hiccups, like etc. etc. And then we discussed how we can analyze non-verbal communication. Non-verbal communication. To analyze non-verbal communication, we enumerated 7 aspects of non-verbal communication. Out of them, we discussed a few aspects. Today we are going to study the further aspect, and the next one is touching behavior. Touching behavior is defined as when we stroke somebody, when we hold somebody, when we hit somebody, when we touch somebody. All these things also convey some non-verbal messages. For example, when you make a handshake with somebody, do you think that you convey something through their non-verbal communication? Obviously, when somebody has a handshake with you,
you form some opinion about that person who has given his hand to you. On the basis of the grip of the hand, you make an opinion whether the person was very candid or whether the person was very egoistic, proud, or it was just a routine handshake. So touching behavior is also very important to understand the non-verbal aspect of communication. For example, if you meet somebody in a situation in which you have a pat on the arm or somebody touches you, it shows your relationship with that person. It communicates something non-verbally. It gives you a very vivid message to understand the feeling of that person. You can very well form an opinion on the basis of these touching behavior, that whether the person wants to convey you some warm feeling or some very cold feeling. So touching behavior is another kind of non-verbal behavior. नॉन-वर्बल बिहेवियर की एक किस्म है टचिंग बिहेवियर. टचिंग बिहेवियर से हम दूसरे शख्स के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं. आमतौर पे वी कैन मेक एन ओपिनियन अबाउट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ टचिंग बिहेवियर. यानी आप जब किसी सुपीरियर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जब उनसे हाथ मिलाते हैं तो उस हाथ मिलाने में एक सुपीरियरिटी जो है वो ट्रांसफर होती है उस सुपीरियर पर्सन से आपको, या आप अपने सबऑर्डिनेट के पास जाते हैं. यू वांट टू कीप इट डिस्टेंस एंड यू शो इट थ्रू टचिंग एज वेल, कि आप टचिंग के जरिए अपने उस बिहेवियर को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं. आप जुबान से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आप अपने इस बिहेवियर से दूसरे शख्स को बहुत कुछ पहुंचा देते हैं. तो टचिंग बिहेवियर जो है ये हमारा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मीन्स है. तो फिजिकल अपीयरेंस की तरह और पैरा लैंग्वेज की तरह टचिंग बिहेवियर भी जो है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पहुंचाता है. किसी भी शख्स के साथ मिलने के बाद आप उसके बारे में जो ओपिनियन टाइम करते हैं, उस ओपिनियन में जिस तरह उसकी फिजिकल अपीयरेंस, जिस तरह पैरा लैंग्वेज और जिस तरह दूसरे नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो है वो साथ जाते हैं, उसी तरह टचिंग बिहेवियर भी साथ जाता है. टचिंग बिहेवियर के बाद अगली चीज़ जो है वो देखते हैं कि वो क्या है. Proximity. Proximity means nearness in terms of physical space. How people use their personal space and that of others communicates message. This response to spatial relationships in formal, informal and intimate setting indicates how the person perceives and feels in that space. यानी proximity जो है ये एक बड़ा अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि कैसे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ स्पेस दे के अपने आप को, अपना रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं. ज़रा सोचिए कि आप कॉलेज में अपने कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, आप एक टीचर को देख रहे हैं और एक स्टूडेंट है, दोनों खड़े हैं, और देखेंगे कि उनके दरमियान एक खास डिस्टेंस जो है वो मौजूद है. एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ टू टीचर्स टॉकिंग टू वन अनदर. आप देखेंगे कि उनका डिस्टेंस जो है वो कम डिस्टेंस है. दे रिलेट दैट वंस अ businessman of Middle East had an interaction with an American businessman. So American have a certain concept of space or proximity when they are interacting with stranger. आमतौर पे the concept of American of proximity is 18 inches. यानी Americans जो है when they are interacting with the business people, they like to keep a distance of at least 18 inches, 18 inches. लेकिन obviously we can understand, we know that Middle East के लोग जो हैं उनका अपना है, उनका कुर्बत यानी क्लोजनेस जो है वो ज़्यादा उनके यहाँ रिस्पेक्ट को या रिलेशनशिप को शो करते हैं. वो कहते हैं कि they are having interaction. So the Middle East businessman was coming closer to the American and the American was retreating, and at the end of the conversation the American was out of the room and he thought that he was being bullied. ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हों तो नॉन वर्बल क्यूज में इस स्पेस का बहुत ख्याल रखें. हमें आज बिजनेस कम्युनिकेशन की किताबों में आसानी से जान सकते हैं कि कौन से मुल्क में, कौन से कल्चर में स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है. जैसे मैंने अभी कहा कि अमेरिकन्स लाइक टू कीप एन 18 इंचेस डिस्टेंस बिटवीन बिजनेस पीपल, या अपने वर्क प्लेस के ऊपर जो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो 18 इंच का फर्क. इसी तरह ऑस्ट्रेलियन जो है दे लाइक टू हैव एन डिस्टेंस ऑफ एन आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ के फासले पे, बट विद देयर रिलेटिव्स दे लाइक टू हैव एट लीस्ट ऑफ हाफ एन आर्म. इसी तरह दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिफर्स फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर. ये तसव्वुर जो है वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में होता है. अब मिसाल के तौर पे अपने मुल्क का जिक्र लें, पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि when we are talking to our friends, so this distance hardly matters. But when we are interacting in a formal situation, when we are in our offices, we like to maintain certain distance. This is very important because distance का concept जो है ये भी हमारा एक मैसेज जो है वो कन्वे करता है दूसरे आदमी को कि हमारा कितना डिस्टेंस है. डिस्टेंस में जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उनमें जेंडर है, उनमें स्टेटस है, उनमें रोल है, उनमें पोजीशन है. इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स, अगर हम खवातीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें स्पेस का खास स्पेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, या वो हमसे इंटरेक्ट कर रही हैं. लेकिन आप देखेंगे कि दो खवातीन जब आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं तो उनका स्पेस का डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, और ये कल्चरल स्पेसिफिक है. ये वन कल्चर टू अनदर कल्चर ये डिफरेंट है. हम ये नहीं कह सकते कि जो मामला हमारे कल्चर में है वही दूसरे कल्चर में है. ये बहुत जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमारे कल्चर में क्या चीज़ें हैं. आज जैसे हर चीज़ में नई तरक्की हो रही है, वर्क प्लेस पे अब डाइवर्सिटी जो है वो आती जा रही है. यानी एक ज़माना था बहुत कम खवातीन जो थी वो जॉब करती थी, बट नाउ वी ऑल नो दैट इन एवरी ऑफिस वी फाइंड लॉट ऑफ women folk working at every level. So we need to understand that things are now changing and we have to take care of these things. We have to learn these new concepts about workplace. के workplace पे अब जब डाइवर्सिटी जो है in terms of gender आ गई है तो इसमें हम कैसे अपने आप को बेहतर तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं. इसी तरह प्रॉक्सिमिटी जो है उसमें जैसे मैंने कहा आपका स्टेटस जो है वो बहुत है. When you are talking to your boss and when your boss is talking to you, obviously in a formal situation there needs to be a proper distance. एक proper distance जो है वो होना चाहिए. इसी तरह रोल जो है कि आप किस रोल में इंटरेक्ट कर रहे हैं ये भी बहुत अहम रोल है. समटाइम्स ये है कि हम अपनी ज़ाती हैसियत में वी आर समथिंग बट इन अ सर्टेन रोल वी बिकम अ कॉमन पर्सन. फॉर एग्जांपल
as a shopkeeper, customer, you go to a shop and you interact with the shopkeeper. Now you may be a very high up. You are in the role of a customer. तो कस्टमर का शॉपकीपर का जो रोल है वो उस रोल को आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं. तो ये रोल, जेंडर, स्टेटस, इस तरह की चीजें जो है ये प्रॉक्सिमिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती हैं. इससे हमें पता लगता है कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं. किसी भी कल्चर में लोग जो हैं वो कितना प्रॉक्सिमिटी के बारे में कॉन्सेप्ट रखते हैं, इसका जानना बहुत जरूरी है ताकि हम जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमारे नॉन वर्बल क्यूज जो है वो भी पॉजिटिव मैसेज जो है वो दे रहे हो. इस प्रॉक्सिमिटी के बाद अगली चीज क्या है जिसको देखते हैं आर्टिफैक्ट. आर्टिफैक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिफैक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेजेस अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट, इमेज, मूड, फीलिंग और स्टाइल. फॉर एग्जांपल परफ्यूम, क्लोथ्स, लिपस्टिक्स, ग्लासेस project the style or mood of the wearer. Many artifacts are common to the group, but we use artifacts, particularly clothing, as an individual form of communication. तो जैसे आपने देखा कि आर्टिफैक्ट जो है these are all objects. आपकी ड्रेसिंग है, क्लोथिंग है, ये आपकी नॉन वर्बल मैसेजेस जो है वो दूसरों को पहुंचाते हैं. आपने क्या पहना हुआ है, आप किस मूड में है, आप किन चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं. आपकी देखें, जैसे हम कहते हैं कि किसी शख्स के हम कहते हैं कि वो फलां आदमी जो है वो ब्रांडेड सूट पहनता है. तो अब ये तमाम चीज़ें जो है ये नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं दूसरों को कि हम क्या किस तरह का अपनी ज़ात का इमेज रखते हैं. आपका इमेज जो है वो आपके आर्टिफैक्ट्स के जरिए दूसरों तक पहुंचाता है. लेकिन आर्टिफैक्ट जो है ये एनवायरनमेंट के साथ इसका आपस में मैच करना बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उस ऑफिस में लोग जो हैं वो खास तरह का ड्रेस जो है या क्लोथिंग जो है वो पहने हुए हैं. आपको उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो पार्टी ड्रेस में वहाँ आया हो. इसी तरह when you go to a party, you are less likely to see anybody wearing some very formal dress that shows that he is working in an office at that very moment. कि उस लम्हे जो है वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है. तो आर्टिफैक्ट जो है ये हमारे साथ साथ हमारे इमेज को लेकर चल रहे होते हैं कि हम क्या दूसरों को अपने बारे में इमेज देना चाहते हैं. इसी तरह आर्टिफैक्ट के बारे में जो एक और चीज़ है वो इवन इफ यू डिसाइड यू विल नॉट बॉदर अबाउट पर्सनल अपीयरेंस और क्लोथ्स, others will read the message as part of your non-verbal communication. यानी अगर ये हम कहें कि हम कपड़ों के बारे में बॉदर नहीं करते तो ये भी असल में हमारी तरफ से एक मैसेज जो है वही दूसरों को कन्वे कर देता है. ये आप कहें कि आप नहीं ख्याल करते. मिसाल के तौर पे अगर आप किसी पार्टी में आपने जाना है और उस पार्टी में आप उस पार्टी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रेसअप नहीं होके जाते, कैजुअल ड्रेस में चले जाते हैं. आप शो करना चाहते हैं कि आप बॉदर नहीं कर रहे और अगला जो है वो आपका मैसेज जो है वो रिसीव कर रहा है. आप जो पहनते हैं, जैसे आप खड़े होते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप खामोश खड़े होते हैं, यानी हर हालत में आप कम्युनिकेट जो है वो कर रहे होते हैं. आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी आवाज़, जैसे हमने देखा कि पैरा लैंग्वेज में कि सिर्फ अल्फाज नहीं, लफ्ज़ ही नहीं, हम बोलते हैं लफ्ज़ के साथ बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हम कन्वे कर रहे होते हैं. तो हम हर वक्त जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर रहे होते हैं. तो इस वक्त भी अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं कर रहा बल्कि पोस्टर, जेस्चर, पैरा लैंग्वेज या फिजिकल अपीयरेंस, तमाम चीज़ों जो है वो साथ साथ कम्युनिकेट कर रही हैं. नेक्स्ट थिंग जो है उसका हम देखते हैं कि वो क्या है. नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर. यानी एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे इस वक्त मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ तो स्टूडियो का एक खास तरह से इसका एक गेटअप है. मैं एक क्लासरूम जो है उसको हमने इस वक्त बनाया हुआ है. मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये टेबल है, मेरे पीछे ये प्लाज्मा है, मेरे सामने ये कीबोर्ड है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखने वालों को एक खास तासुर जो है वो दे रही है. यानी ये एनवायरनमेंट जो है ये देखने वालों को एक खास मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है. जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में दाखिल होते ही उस ऑफिस के बारे में आप एक ओपिनियन बनाते हैं. उस ऑफिस के टेबल्स, उस ऑफिस की डेकोरेशन, उस ऑफिस का इंटीरियर, उस ऑफिस में जिस तरह लोग बैठे हुए हैं सीट्स पे, उस ऑफिस को किस का क्या पेंट किया गया, ये तमाम चीज़ें जो है एनवायरनमेंट का हिस्सा है और ये तमाम चीज़ें जो है ये कम्युनिकेट जो है वो कर रही हैं. आप बहुत आसानी के साथ फ़र्क वाज़ेह कर लेते हैं. अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएँ तो वहाँ दाखिल होते ही आपको जो एनवायरनमेट जो है वो देखने को मिलेगा, जो चीज़ें मिलेंगी, जो टेबल, जो चेयर्स, जो फाइल कैबिनेट्स और इस तरह की तमाम दूसरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो आपको एक खास एहसास देंगी. उन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका खास ओपिनियन जो है वो फॉर्म करेंगे. एंड सिमिलरली इफ़ यू गो टू एनी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली यानी किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आजकल हमारे यहाँ बैंक्स जो हैं वो उनकी उस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाते हैं तो यू विल वेरी सून फील द डिफरेंस दैट इज इन अ पब्लिक ऑफिस एंड दैट इज इन अ प्राइवेट ऑफिस. सरकारी और गैर सरकारी दफातर के एनवायरनमेंट जो है वो उनका फर्क जो है वो आसानी के साथ आपको महसूस हो जाएगा. तो हम एनवायरमेंटल जो कम्युनिकेशन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं. द एनवायरमेंट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर दिस रीजन ऑर्गेनाइजेशन गिव केयरफुल कंसिडरेशन टू ऑफिस स्पेस, फैक्ट्री लेआउट, द सेल्स एरिया एंड कॉन्फ्रेंस वेन्यूज. द एनवायरमेंट शुड पुट पीपल एट ईज एंड मैच देयर एक्सपेक्टेशन. An unsuitable environment can produce noise that causes communication barrier and interferes with the communication process. So environmental communication जो है ये किसी भी जगह की आपको आसानी आपको इजी फील कराएगा या आप टेंस फीलिंग करेंगे. जैसे किसी ऑफिस, किसी बैंक में, सरकारी बैंक जो है इनमें या किसी प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो आपको अंदर जाते ही ऑब्वियसली किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो वो सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, तो उस जाते ही आप एक आसानी का एहसास जो है वो महसूस करेंगे. इसी तरह किसी ऐसे बैंक में जाएं जहाँ अभी ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई तो यू विल फील डिफरेंटली. सो वी से दैट सर्टेन इंस्टिंक्ट्स सच एज डिजायर फॉर प्राइवेसी, फैमिलियरिटी एंड सिक्योरिटी नीड टू बी सैटिस्फाइड. केयरफुल डिजाइन ऑफ द वर्कप्लेस कैन मीट दीज नीड्स एंड इन सो डूइंग इंप्रूव कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन बातों का ख्याल रखना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि जिस एनवायरनमेंट के नतीजे में उनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, सिक्योरिटी का एहसास हो, जिस एनवायरनमेंट के नतीजे में वो काम के लिए अपने आप को मोटिवेटेड पाएँ. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को एक पॉजिटिव फीलिंग का देने का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि वो उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो फील करें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके साथ कहाँ तक लेके चल रही है, उसको कैसे क्या महसूस करवाना चाह रही है.
तो हमने अब तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हवाले से ये अब तक हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में एक चीज़ जो है वो एक अहम चीज़ है, वो है पंक्चुअलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वर्कफोर्स जो है या कोई मेंबर ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो पंक्चुअल होकर या पंक्चुअलिटी को का ख्याल ना रखे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो देना चाहता है कि वो कैसे कंसिडर कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को। यानी यहाँ कहें कि एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज टाइम। यानी टाइम जो है वो एक और एस्पेक्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, अगर हम इसको एनवायरमेंटल फैक्टर के अंडर इसको डिस्कस करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लोग जो है वो पंक्चुअल हो, वो वक्त पे आए और वक्त पे जाएं। इसी तरह टाइमिंग का लोग एक दूसरे के साथ जब मीटिंग करते हैं तब भी इस बात का ख्याल रखते हैं। ये टाइमिंग का कॉन्सेप्ट भी फिर कल्चरल स्पेसिफिक है। फिर हम कहेंगे कि अगर हमें इंटरेक्ट करना है अक्रॉस कल्चर्स, हमें अमेरिकन के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उनका टाइम का या पंक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जो टाइम फिक्स किया गया होता है मीटिंग्स के लिए, उन टाइमिंग्स को के ऊपर पहुंचना चाहिए, उनसे पहले पहुंचना चाहिए या उनके बाद पहुंचना चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान की बात हो तो हमें पता है कि हमारे यहाँ फॉर्मली बहरहाल टाइम का ख्याल रखा जाता है, लेकिन हमारे कल्चर में इनफॉर्मली टाइमिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं और आप बहुत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि जब हमें कोई इनफॉर्मल फंक्शन में जाना होता है तो फिर 8 बजे का मतलब 10-11 बजे होता है। लेकिन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि टाइमिंग जो है वो कैसे ऑब्जर्व करने हैं। इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टाइम। हम अगर मिडल ईस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें उनके कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का पता होना चाहिए। हम अमेरिकन के साथ कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, या दूसरे एशियन कंट्री लाइक जापान है इसके साथ कर रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम उन मुल्कों का भी पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें कि हमने क्या गुफ्तगू की है, तो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अदर देन दी इनकोडेड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, बोथ रिटन एंड ओरल। के इनकोडेड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है उसके हट के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसी तरह फिर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि फिजिकल अपीयरेंस को देखना पड़ता है, टचिंग बिहेवियर को देखना पड़ता है, पैरा लैंग्वेज को देखना पड़ता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। लेकिन यह कि हम कैसे इन तमाम मसाइल पे ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स सी इट। So your response to behavior, non-verbal behavior, teacher and student. Here let's check that what we have discussed so far is how far understandable to you, all of you. For example, you see before you on the screen that we have picked up two characters, teacher and a student, and you have to fill in these blanks with the non-verbal behavior of both teacher and the student. You have to tell about teacher's body language, you have to tell about teacher's physical appearance, you have to tell about teacher's artifacts, you have to tell about the environment, and all the factors of those 7 factors that we have studied so far. So think of classroom and then think of the teacher and the student, and fill in the blanks or fill in the columns regarding their physical features, their body language, their environmental factors, etc., etc. And you will be able to give a picture of a teacher and a student to anyone who to your friends. Let's suppose कि non-verbal behavior जो है वो कैसे मुख्तलिफ होता है एक क्लासरूम में बैठे हुए दो लोगों का, one is a teacher and the other is a student. How they are different because of their non-verbal communication. Similarly, let's take another example of two organization, one organization that you like and the other organization that you don't like. So let's do the same exercise with this column. Let's see your response to an organization. Again, you have to write something about the characteristics like atmosphere, use of space, smell, color, service, building, inclusions and fittings, and sounds that you find in one organization of your liking and another organization of your disliking. So you'll feel the difference that normally we do not consciously know this, that how strikingly we have formed opinion of these things. But when we fill up such a sheet of response, we can very well know that how do we, on what basis we like an organization and on what basis we dislike an organization. इससे हमें ये अंदाजा होगा कि हम बता सकते हैं कि किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट करती है, मैसेज को कम्युनिकेट करता है, बगैर लफ्ज़ों के कैसे मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब हम देखें कि हम कैसे मैच कर सकते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन को विद द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे हम मैच कर सकते हैं। एक बात तो हमने जैसे शुरू में भी डिस्कस की थी कि हम टोटल इफेक्ट देना चाहते हैं, टोटल मैसेज देना चाहते हैं। टोटल मैसेज जो है दैट इज फॉर्म बोथ विद नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज के जो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज दिए जाते हैं, उन दोनों को मिला के हम टोटल मैसेज जो है वो देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कैसे मैच किया जा सकता है, मैचिंग का अमल जो है वो कैसे हो सकता है। Matching the non-verbal and verbal parts of the total message. The total message combines spoken word with the non-verbal communication. Non-verbal communication adds meaning, modified or changes the spoken word. यानी non-verbal communication जो है ये modify करती है या ये change करती है या add करती है, यानी add something to the spoken messages. Non-verbal communication जो है ये हमेशा spoken message को strengthen कर रही है in either way. या आप उसका इनकार कर रहे हैं या आप उसका इकरार कर रहे हैं। तो इसकी कम से कम 5 characteristics है, such as repeating. यानी आप एक oral message जो है वो दे रहे हैं और oral message देते देते आप उसके साथ अपना कोई जेस्चर जो है वो देते हैं और आप हाथ हिलाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो आप ऑरल मैसेज दे रहे हैं, वर्बल मैसेज दे रहे हैं, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। तो ये मैच कर रहे हैं, आपका नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ मैच कर रहा है, तो इसमें स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी चीज जो है दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, लुकिंग एट समथिंग एल्स, यू से टू समबडी यस आई लाइक व्हाट यू हैव सेड। यानी आपका नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो आपके वर्बल बिहेवियर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मैंने कई दफा आपको मिसाल भी दी है कि आप तो काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आप दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरे को साथ कह रहे हैं कि आप उसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इस तरह आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है। somebody has made a request कि आप उनका ये काम करते हैं, अब आप कहते हैं अच्छा मैं कर दूंगा, लेकिन the way you say it is different.
यानी आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक वर्बल कम्युनिकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दूसरी चीज़ है कि जब हमें मैच करना होता है वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, ये डू रिपीटिंग के बाद सेकंड थिंग है कि जिसका हमें ख्याल रखना है कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्ट्रोडिक्ट ना कर रहे हों। तीसरी चीज़ जो है दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग, यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स टू शो प्लेजर, डिसअपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। यानी आपके अल्फाज जो हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आपके एक्सप्रेशन। जैसे आप किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं, यू आर सेइंग कांग्रेचुलेशन टू समबडी ओवर हिज और हर सक्सेस, लेकिन यह है कि द वे यू से द वर्ड कांग्रेचुलेशन, योर नॉन वर्बल क्यूज डू नॉट कन्फॉर्म टू इट। आपके नॉन वर्बल क्यूज जो है उसके साथ साथ नहीं चल रहे होते। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग है कि हम आमतौर पे जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमारे एक्सप्रेशन भी हमारे अल्फाज के साथ साथ चल रहे हो ताकि दूसरा समझे। मैंने आपको बताया था कि 60 to 90% ऑफ द मैसेज इज गिवन थ्रू नॉन वर्बल क्यूज। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि आपके किस मैसेज में या फलां शख्स के किस मैसेज में कितना था। नॉन वर्बल मैसेज जो है ये बहुत अहम होते हैं। तो जब आप कोई भी वर्बल मैसेज दे रहे हो, चाहे आप किसी खुशी का वर्बल मैसेज दे रहे हैं, किसी प्लेजर का वर्बल मैसेज दे रहे हैं, किसी फॉर्मल सिचुएशन में आप किसी बात को बयान कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू योर सबऑर्डिनेट्स, यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, सुपीरियर्स, तो उसमें आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो साथ साथ जाने चाहिए आपके मैसेजेस के। तो फर्स्ट थिंग थी रिपीटिंग, सेकंड थिंग थी कॉन्ट्राडिक्टिंग, और थर्ड थिंग थी सब्स्टिट्यूटिंग। व्हाट्स द फोर्थ थिंग? Fourth thing is accenting, moving the head and hand to emphasize part of the verbal message, shaking head to say no or to say yes। यानी जब आप तो बात कर रहे हो तो उस बात के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने नॉन वर्बल, यानी आपने हाँ कहना है तो सर हिला रहे हैं, आपने ना कहना है तो सर हिला रहे हैं, या आपके हाथ जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो पांचवी चीज़ है वो है कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप अपने नॉन वर्बल जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल अपीयरेंस के जरिए आप उस एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। यानी आपने बात की है तो उसके बाद आप सर हिलाते हैं, दूसरे आदमी को मौका देते हैं कि वो आपकी गुफ्तगू में आपकी बात के जवाब में कोई बात है। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए दूसरे आदमी को की तरफ मुतवज्जे होते हैं और इंतजार करते हैं कि वो बात को आगे बढ़ाए, वो बात को कहे। तो ये पांच चीज़ें जो हैं ये वो चीज़ें हैं कि जिनके जरिए हम कम्युनिकेशन में वर्बल पार्ट को नॉन वर्बल पार्ट के साथ मैच करते हैं। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि हम बहुत कोशिश भी कर लें लेकिन हमेशा हम कामयाब नहीं हो पाते। कभी कभी ये भी होता है कि वी फेल टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज, यानी किसी भी शख्स के नॉन वर्बल क्यूज जो हैं उनको हम समझने में नाकाम हो जाते हैं। आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक्स में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में या दूसरे इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हैं कि क्या पोस्टर्स या क्या जेस्चर जो है वो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग में कोई साहब जो है वो ही सिटिंग विद क्लोज्ड आर्म। अब क्लोज्ड आर्म के साथ जो आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है वो लाजमी बात है कि वो ये मैं आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि वो गुफ्तगू को कंटिन्यू नहीं करना चाहता या वो रिजर्व इस वक्त है। तो अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि इस फलां जेस्चर का क्या मतलब है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बात को, अगर किसी वक्त आप शक में हैं तो आप बात को रिपीट कर लें, आप उनसे बात को पूछ लें, आप उस बात को, उस नॉन वर्बल क्यू को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप उस नॉन वर्बल क्यू को उस कल्चरल एस्पेक्ट में देखें कि कहीं वो नॉन वर्बल क्यू जो है कोई स्पेसिफिक क्यू तो नहीं है। क्योंकि हमने जैसे ये देखा कि तमाम कल्चर में जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो डिफरेंट है। एक कल्चर में कोई चीज़ जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट रखती है तो वही चीज़ जो है वो दूसरे कल्चर में एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो रखती है। जिसकी मिसाल है आई कॉन्टैक्ट जो है, यानी आई कॉन्टैक्ट जो है वो एक कल्चर में बड़ी एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। आप वेस्टर्न कल्चर में देखें तो वहाँ आई कॉन्टैक्ट जो है उसको एक पॉजिटिव वैल्यू की हैसियत से लिया जाता है। यानी अगर वहाँ कोई शख्स जो है वो आई कॉन्टैक्ट से बच रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो इनोसेंट नहीं है, वो उसके ज़हन में कोई बात है या वो उस वक्त वो किसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। वहाँ आई कॉन्टैक्ट जो है ये इसमें कोई जेंडर बाइसेस भी नहीं है, जेंडर डिफरेंसेस जो है वो भी नहीं है। वहाँ खवातीन और मर्द हज़रात के दरमियान आई कॉन्टैक्ट जो है पॉजिटिव वैल्यू के तौर पर दिया जाता है। लेकिन अगर इसी को हम मुस्लिम कल्चर में लें, अपने पाकिस्तानी कल्चर में लें, तो हमारे यहाँ आई कॉन्टैक्ट जो है वो उसका एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो दिया जाता है। तो यही मैं बात कर रहा था कि अगर हम किसी वक्त ये महसूस करें कि किसी खास सिचुएशन में हमारा जो हम किसी दूसरे शख्स के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ने से कासर है, तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपना ओपिनियन जो हमारे ज़हन में है उसी को करें? अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है हम कोई गलत ओपिनियन जो है वो बना लें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम तो क्वेश्चन पुट अप कर लें, उस शख्स से जिसके नॉन वर्बल क्यू को हम समझने से कासर हैं, हम उसके साथ कोई सवाल कर दें और उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि somebody sitting with closed arm, तो you can simply ask the gentleman why he is sitting with folded arm, कि वो हाथ बांधे हुए क्या है। Maybe you have the answer कि the person says that he is not feeling well, he has headache, he has some arm injury or something else। तो इसके नतीजे में आपको पता चल जाएगा कि असल मामला क्या है। So whenever you are dealing with the contradiction between non-verbal and verbal communication, you have to take care of things. The dealing with contradiction between verbal and non-verbal messages may contradict or complement verbal message. Non-verbal communication is seldom consciously observed unless it confuses the receiver. When the non-verbal message such as pitch of voice, facial expression, posture, lack of agreement with verbal message, it is useful to check the meaning. When you are in doubt, are comfortable with communication, have to make a decision on the basis of total message. तो जब भी आप non-verbal और verbal communication के दरमियान फर्क महसूस करें, आप communicate मैसेज को सही अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो, तो ये बेहतर है कि आप उस शख्स के साथ कंफर्म कर लें कि उनके खास नॉन-वर्बल मैसेज का क्या मतलब है। कि जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू जो आमतौर पे होते हैं, दे आर गेट कंफ्यूज। वेरी फ्यू पीपल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आर कॉन्फिडेंट। अक्सर औकात जो होता है कंफ्यूज होता है, तो उस वक्त उनके नॉन वर्बल जो मैसेज है, यानी पिच में फ़र्क होगा, शॉर्ट क्लियरिंग कर रहे होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, पोस्टर जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो उस वक्त ज़रूरी है
कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये कॉमन है, इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल आम है। लेकिन अगर ये ऐसे ही पोस्टर आप किसी बिजनेस मीटिंग में किसी कॉलीग के साथ या किसी अपने कंपैटिटर के साथ आप पाएं कि वो कंपैटिटर जो है या कॉलीग जो है वो इंटरेक्ट करते वक्त उनके नॉन वर्बल क्यूज जो है वो इस तरह के हैं कि पोस्टर नॉर्मल नहीं है, आवाज़ जो है उसका पैरा लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप कैसे कैसे समझ सकते हैं? तो इस सूरत के हाल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट पुट अप अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी simple question rather, to the person with whom you are interacting, that what is the matter with him or why he is in that particular non-verbal behavior. तो इससे हमें आसानी हो जाती है कि हम उस जो act of communication है उसको properly understand कर सकें। So non-verbal communication जो है ये आपको help करता है कि कैसे आप अपनी organization में अपने लोगों के बारे में different opinion जो है वो बनाएं। Being speaker of an organization, you have to form opinion about your colleagues, about your subordinates. So most of your knowledge of those people comes from their non-verbal communication, whether they are good at work or they are taking interest or they are taking no interest in their work. So it all depends on the non-verbal communication that they emit every time you interact with those people. मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाएं जिसमें आप ये देखें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं किसी कंपनी के जिसमें लोग जो है पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, उसमें आप सुबह हॉल में दाखिल हुए हैं, आपके चारों तरफ काउंटर हैं जिसमें डिफरेंट लोग हैं वो उधर काम कर रहे हैं। तो अब जाते जाते आप एक काउंटर पे पहुंचे हैं तो आप देखते हैं कि आप उस काउंटर की आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है फॉर एग्जांपल इस वक्त पार्टी ड्रेस में है। तो अब ये पार्टी ड्रेस जो है ये आर्टिफैक्ट जो है ये क्या आपके जो ओवरऑल जो उस ऑफिस का जो एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है क्या इसके साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसको रिपीट कर रहा है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जो एस्पेक्ट हमने स्टडी किए हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे वर्बल कम्युनिकेशन को रिपीट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, एक्सेंट करता है, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन को, ये हमें हेल्प करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन तमाम एस्पेक्ट को समझने के लिए। अब आप देखेंगे आप इन तमाम बातों के साथ जो हमने की है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हवाले से, फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इट इज दैट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज नॉट एनकोडेड इन वर्ड्स, एंड टू ऑल दोस डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, you will feel that your concept of communication is ready to enhance to some extent। और आप अब दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो आप बेहतर तरीके पे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि उस वक्त उनके वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है और उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और कैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कैसे वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो आज की ये गुफ्तगू जो है ये इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टॉपिक को खत्म करती है। इसमें हमने जो सारा जिक्र किया कि डिफरेंट तरीके से किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना असलन इज अ पार्ट टू ओवरकम द बैरियर्स। यानी अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इन तमाम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया प्रॉब्लम्स और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो थे उसको डिस्कस किया, उसमें सेमेंटिक बैरियर जो थे, कन्वेंशन ऑफ मीनिंग, इसी तरह फिजिकल बैरियर जो थे, इसी तरह दूसरे जो एटीट्यूड के प्रॉब्लम है, परसेप्चुअल बैरियर जो है, इस तरह तमाम जो बैरियर जो थे उनको हमने अंडरस्टैंड किया और इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड किया। तो ये दोनों मिलकर हमारी कम्युनिकेशन के बैरियर्स को मिनिमाइज करते हैं। यानी हम अब बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसे किया जा सकता है और कैसे हम कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी एबल टू कंट्रोल द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन के एक्ट को कंट्रोल कर सकें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है क्या होती है, कैसे की जाती है, और जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है उनकी क्या खूबियां हैं, व्हाट आर देयर ट्रेट्स एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स के इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है उनके ट्रेट्स क्या हैं और उनकी खूबियां क्या हैं, किस तरह वो इन तमाम ऑब्स्टिकल्स के ऊपर काबू पाते हैं, किस तरह वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बेहतर तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें और जो दूसरे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब तक अगर हम रिकैप करें तो हमने अब तक जो अंडरस्टैंड किया ये तमाम कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को किया। अब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे मुमकिन है, इन तमाम टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज तक इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हमारी ये वीडियो है वो हो गया कंप्लीट। लेसन नंबर 7 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। Non-verbal communication consists of that part of a message that is not encoded in words. The non-verbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feelings and preference more spontaneously and honestly than the verbal part. If the verbal message does not match the non-verbal communication, people tend to believe the non-verbal message, ठीक है। So we have here next proximity, use of space. Proximity means nearness. In terms of physical space, how people use their personal space and that of others communicates a message. This response to spatial relationship, informal and intimate settings indicates how that person perceives and feels in that
ठीक है. People also use their height and weight to convey a message. If you tower over the other people in a way that intrudes on their personal space, you may cause their discomfort and withdrawal. ठीक है. Personal space varies according to their gender, status, role, culture. ठीक है. Research has shown that Australians speak to acquaintances or work colleagues leave about an arm's length of space between themselves and the other person. People speaking to friends and family leave about half an arm or an elbow's length between themselves and others. People in intimate relationship allow direct and close contact when speaking to each other. The use of space reflects the way people feel about others. Americans keep a distance of 18 inches from other person during a formal conversation. सही हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. Artifacts are objects used to convey non-verbal messages about self-concept, image, mood, feeling or style. ठीक है. For example, perfume, clothes, lipstick, glasses and hair pieces project the style or mood of the wearer. Many artifacts are common to the group but also use artifacts, particularly clothing, as an individual form of communication. Appearance and clothes are important and highly visible parts of nonverbal communication. Consider the difference between the clothes you wear at home to the beach and the clothes you wear to a job interview. The choice of clothes reflects on mood and your attitude to the occasion. Other people note and place their own interpretation on your dress. ठीक है. Even if you decide you will not bother about personal appearance or clothing, others will read this message as part of your non-verbal communication. And here we have environmental factors. The environment can influence the outcome of communication. For this reason, organizations give careful consideration to office space, factory layout, the sales area and conference venues. The environment should put people at ease and match their expectations. An unsuitable environment can produce noise that causes communication barriers and interferes with the communication process. Certain instincts such as desire for privacy, familiarity and security need to be satisfied. Careful design of the workplace can meet these needs and in so doing improve communication, productivity and morale. Natural and artificial light, color, temperature, tables, chairs, desks, lounges, plants, sound, artwork, magazines and floor and wall coverings all have an impact on people's perception of an organization. सही है. In workplace, attention to punctuality or disregard for it can make a strong non-verbal impact. A disregard for punctuality may, like a sloppy appearance, merely reflect a casual attitude. However, a deliberate decision to keep a contact waiting may be a way to communicate the negative message. While punctuality is a matter of courtesy, attitudes towards it's important vary between cultures. To be kept waiting for a business appointment in the Middle East will not have the same significance as a delay in some European countries where punctuality is highly regarded. So the above discussion of the 7 aspects of nonverbal communication provides a theoretical analysis. However, to consider each aspect in isolation is artificial. In practice, what is sent as a total message is a cluster of nonverbal cues and
sorry, in association with the spoken words. Explain the normal behavior of the following in a formal situation. Okay, so this यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक्सप्लेन करें फॉर नॉर्मल। एक सेकेंड, क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द नॉन वर्बल बिहेवियर। अच्छा, हमने नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो बताना है। बॉडी मूवमेंट नॉन वर्बल बिहेवियर है टीचर का। टीचर की बॉडी मूवमेंट क्या होगी? जब वो पढ़ा रहा होगा तो वो खड़ा होगा ना, तब खड़ा होगा या चल रहा होगा तो हमें कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, बोल कर समझा रहा होगा। वही होगी उसकी बॉडी मूवमेंट, या तो चल रहा होगा या बैठा हुआ होगा या खड़ा हुआ लिख रहा होगा, ठीक है। और या फिर और स्टूडेंट की क्या होगी? वो बैठा हुआ होगा, समझ रहा होगा, उसकी आई कॉन्टेक्ट टीचर की तरफ होगा, और उसके अलावा उसके बिल्कुल अटेंटिव बैठा हुआ होगा। या फिर स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होते हैं कि मतलब बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते, हेड डाउन करके बैठे होते हैं, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट ही टीचर और स्टूडेंट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आ रही है। मतलब यूनिफॉर्म हो सकता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, और फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, टीचर पढ़ा रहे होंगे तो बिल्कुल ही टाइडी होंगे टीचर्स, ठीक है। अब तो टीचर तो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, बट वो जो उन्होंने जो भी कुछ पहना वो बहुत फॉर्मल होगा। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पहना होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। उसके अलावा वो लोग अपना फिजिकली कुछ लिख रहे होंगे या टीचर को अटेंटिवली सुन रहे होंगे, टीचर जो है वो बोल रहे होंगे, सही है। उसके बाद टचिंग बिहेवियर। टचिंग बिहेवियर में क्या हो सकता है? टीचर बच्चों को मार भी सकते हैं, ठीक है, थप्पड़ मार होगी टीचर, ठीक है, कोई भी गलती पर। या फिर उसके अलावा शाबाश दे रही होगी, पैट कर रही होगी, पैट कर रही होगी, मतलब पैटिंग करी हो उसके सर पर या फिर कंधे पर शाबाश देने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो उस वक्त क्या करेगा? स्टूडेंट टचिंग बिहेवियर में टीचर को स्टूडेंट तो ऐसे कुछ भी नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो इसके जवाब में स्टूडेंट बस शाबाश लेगा या फिर मार खा लेगा, ठीक है। और उसके अलावा वोकल क्वालिटीज़ में जो टीचर्स हैं, भी अपनी वोकल क्वालिटी, अपनी आवाज़ को यूज़ करते हैं, मतलब शाउट करने के लिए भी यूज़ करेंगे। अपने जो बच्चा मतलब पढ़ नहीं रहा होगा उसको शाउट करने के लिए भी यूज़ करेंगे। और उसके अलावा उनकी क्वालिटीज़ जो डिफरेंट होगी, आवाज़ की क्वालिटी, पिच, सब कुछ डिफरेंट होगा। और अगर कोई बच्चा उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ता है, उसके लिए वो थोड़े नरम हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ साउंड नरम हो जाएगा। और जो बच्चे फिर नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल होगा और हार्श सिचुएशन में हार्श होगा, ठीक है। सेम ही बच्चों के साथ हो जाएगा। टीचर अगर कोई बोरिंग क्लास होगी, मतलब बच्चे जिस क्लास को बोरिंग समझते होंगे, तो वो उस वक्त जो है वो चुप करके बैठे होंगे, और या फिर सो रहे होंगे, या फिर उनको अगर नहीं पढ़ना होता तो उस वक्त वो सब लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। इस तरह के वो क्वालिटी। या फिर उसके अलावा जिसको कोई जब भी टीचर बोलती है कि आप लोग रीड करें क्लास में, ये सुना है, वो सुना है, ये बताएं, वो बताएं, कोई भी सवाल पूछते हैं तो बच्चा जो उठकर जवाब देगा वो वोकल क्वालिटीज़ को यूज़ कर ही जवाब देगा। यूज़ ऑफ स्पेस। अब स्पेस होती है टीचर में और स्टूडेंट में, बिल्कुल होती है। टीचर का और स्टूडेंट का एक फासला हमेशा बरकरार रहता है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर तो नहीं बैठते ना टीचर और स्टूडेंट्स, बहुत फासले पर बैठते हैं, ठीक है। बिल्कुल टीचर के एहतराम की वजह से ही होता है ऐसा, और ताकि टीचर अच्छी तरह पढ़ा सके, सही है, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से। और ये होगी यूज़ ऑफ स्पेस। और आर्टिफैक्ट्स में भी मैम कोई भी इमेजेस बच्चों के साथ शेयर कर सकती हैं कि वो इसका जवाब दें कि इसका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। और बच्चे भी मैम से इसी तरह से कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं कि मैम आप इसके बारे में मुझे बता दें, ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंट क्या होगी? टीचर और स्टूडेंट में जो है वो, टीचर और स्टूडेंट कहीं पर है तो उनकी इन्वायरमेंट क्या हो सकती है? क्लासरूम हो सकता है ऑब्वियसली, सही है। ब्लैक बोर्ड लगा होगा, वाइट बोर्ड लगा होगा, या प्लाज्मा टीवी लगा होगा, या फिर कोई प्रोजेक्टर लगा होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। यूनियन में हो तो प्रोजेक्टर लगा होगा, या फिर ऑडिटोरियम में बैठे होंगे सब, ठीक है। और टीचर खड़े हुए होंगे, टीचर के पीछे ब्लैक बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा, समझा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गई जनाब
एनवायरनमेंट, गिव योर रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। करेक्टरिस्टिक एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनाइजेशन 1 लाइक, ऑर्गेनाइजेशन 1 डिसलाइक। एटमॉस्फेयर जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेगी वो ऑफ कोर्स बिल्कुल फॉर्मल एटमॉस्फेयर होगा, मतलब कैबिन्स होंगे उसके अंदर ऑफिस वाला माहौल होगा, और उसमें ऑफ कोर्स सब लोग काम करते हुए अपना मतलब कि अपनी अपनी जगह पर सब लोग सही तरह से बैठे होंगे, टाइडीली और फॉर्मल तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे और काम पर भी पूरा का पूरा ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर्स होंगे वहाँ पर लैपटॉप्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं और प्रिंटर्स वगैरह हो सकते हैं ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि बॉस का कैबिन अलग हो सकता है और फिर एम्प्लॉयज़ के कैबिन अलग हो सकते हैं। ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर हो सकती है वहाँ की। वहाँ पर एसी हो सकता है, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर हो सकती है, ठीक है, वो लाइक हो जाएगी। और इसका उलट जो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूज़ ऑफ स्पेस, ऑफ कोर्स स्पेस सब में होगी, सारे आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान भी स्पेस होगी और उनके एक कैबिन के और दूसरे कैबिन के दरमियान में, और ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। और वो उसके साथ तो ऑफ कोर्स स्पेस होती है, ठीक है। उसके अलावा तो जहाँ स्पेस होगी वो ऑर्गेनाइजेशन को लाइक करेगी और डिसलाइक में स्पेस नहीं होगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगी इस चीज़ को, ठीक है। स्मेल भी वहाँ पर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, सफाई खास कर होना, हाइजीनिक होना चाहिए एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा कलर जो है वो भी अकॉर्डिंग टू वर्क कलर होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा ऑफिस में या तो वाइट हो या फिर ब्लैक हो, ठीक है। और उसके अलावा सर्विसेज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, तो फिर होगा ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छा लगेगा तब जब वो ना गिव योर रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँगी तो सर्विस जो मैं प्रोवाइड करूँगी वो मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उसके लिए काम कर रही हूँ तो अब वो क्या लाइक करेगी, ऑफ कोर्स उसके फेवर में बातें करूँगी तो वो लाइक करेगी, उसके फेवर में बातें नहीं करूँगी तो वो डिसलाइक करेगी मेरी बात को, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल, सब कुछ फॉर्मल ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो साउंड प्रूफ बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि अगर कोई एक बंदा बोले और सारी दुनिया ही डिस्टर्ब ना हो जाए, सबका काम डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा एसी होना चाहिए बिल्डिंग में, और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को हर तरह की सहूलत दस्तियाब होनी चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब लोगों को अटेंटिवली काम करना चाहिए। और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब इसमें पिंक, येलो, ब्राउन कलर नहीं होंगे, सिर्फ 1 या 2 कलर हो सकते हैं अलाउड। और बिल्डिंग के ऊपर उसका टाइटल भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इंक्लूजन्स एंड फिटिंग्स, अब इंक्लूजन्स और फिटिंग्स का मैं क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिसको वो इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड कर लें, जहाँ वो लोग चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस करेंगे। अगर हम उनके मुताबिक काम करेंगे तो या उनके मुताबिक राय देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा, और अगर हम उसके मुताबिक राय नहीं देंगे तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है। साउंड्स, अब ऑर्गेनाइजेशन में साउंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, मतलब शाउटिंग साउंड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग काम कर रहे होते हैं, कोई कभी किसी तरह की न्यूज़, कभी कोई न्यूज़। हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगेटिव न्यूज़ भी जुड़ी हुई होती हैं और पॉजिटिव न्यूज़ भी जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको नहीं पता होता कि कौन बंदा क्या सेंसिटिव काम कर रहा हो, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाकर के शाउटिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ही आराम से बात करनी चाहिए। यहाँ तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है। चलें, आप लोगों ने बताना आपको कितना समझ आया और क्या समझ आया, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब चलते हैं, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने किए 2 टॉपिक्स, टॉपिक नंबर 6 और 7, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों ही। ठीक है, सो मुझे दें आप लोग इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।